Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture you will learn the very special kinds of concepts that is known as the pleiotropy and polygenetic inheritance. Many times it was asked in the previous examination, but students are often confused where is the syllabus, where is the topic of the pleiotropy or polygenetic inheritance in our syllabus. Listen carefully. When you turn the overall pages of NCERT and back to the last page, you will have some concept, and that concept is mysterious concept, and that was asked in upcoming examination and mostly asked in the previous examination. Most of the students are also confused from which topic it will associate. Actually the pleiotropic and polygenetic inheritance associate with the chapter 5. So the topic that you are studying in the last portion of NCERT are actually important to you. So don't worry, I am with you, and you are also, I hope, doing the good job in your for your upcoming examination. Don't worry if you are having any problem. I am with you each time and every day. So here you have the concepts of pleiotropy and polygenetic inheritance. One by one I will introduce you whatever the important concept regarding the pleiotropy and polygenetic inheritance. First of all, there is need to know the pleiotropy. Pleiotropy. It can be defined as when single gene exhibit several contrasting traits. Several contrasting traits. The genes called pleiotropic genes. Pleiotropic genes and mechanism called pleiotropy. And this is very important. One single gene exhibit several contrasting traits. The genes called pleiotropic genes and the mechanism called pleiotropy. एक ही जीन्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. एक ही जीन्स आप जानते हैं बेसिकली सिंगल जीन्स फॉर द सिंगल contrasting traits, but sometime due to abnormalities of body the single genes may exhibit many kinds of contrasting traits, and that genes are known as the pleiotropic genes. As you all know, suppose that this is the DNA and this is the single genes. This point is the single gene or gene 1. So the single gene is responsible for the single contrasting traits. Often, this is the often or common case. But sometimes this single genes responsible for sometimes this single gene responsible for many contrasting traits. The phenomenon is known as pleiotropy, and the gene is known as pleiotropic gene. जब प्लियोट्रोपिक जीन लिख देंगे तो ये सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं रह जाएगा. ठीक है ना. जब एक जीन बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. सपोज दैट आपके बॉडी में कोई एक जीन है तो वो बॉडी में उंगली के लिए, फिंगर के लिए, नोज के लिए एक कॉमन से प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन बॉडी में कभी कभी कुछ एब्नॉर्मलिटीज ऐसे हो जाती है कि एक ही जीन बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में. एक बीमारी होती है जनरली. एग्जाम्पल फेनिलकीटोन्यूरिया लिख दीजिए कॉपी में. एक बीमारी होती है फेनिलकीटोन्यूरिया, जिसको PKU भी बोलते हैं. इसको बहुत प्यार से PKU भी बोलते हैं. इसमें एक ही जीन्स बहुत सारे ट्रैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लिखिए कॉपी में
in which single gene responsible for skin pigmentation, hair fall, mental retardation, यहां पे लिख रहे हैं रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। इट मींस एक जीन्स जो है सिंगल जीन्स फेनिलकेटोन्यूरिया का बहुत सारी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि वो बीमारी में उसका एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स है, वो जो भी जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे आप कूड़ा फेंकते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है, कबाड़ी वाले के लिए वो एक इनकम है, वैसे ही ये जीन्स जो है क्या करता है कि एक बहुत सारे प्रोटीन बनाता है जो हमारे बॉडी में हेयर फॉल के लिए, मेंटल रिटार्डेशन दिमाग से पैदल होने के लिए, और प्लस जो है स्किन पिगमेंटेशन, शरीर पे जो हमारा स्किन है वो एबनॉर्मल कलर का हो जाता है कहीं कहीं। तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम अपीयर होती है इस बीमारी में फेनिलकेटोन्यूरिया। आगे बताएंगे हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनता है फेनिलएलानाइन, उसी की एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आती है। आगे बहुत डिटेल बताएंगे। ये जेनेटिक कैरेक्टर्स है, यानी कि मम्मी पापा को होगा तो बच्चे को होगा। ये फेनिलकेटोन्यूरिया एक एबनॉर्मेलिटीज है बॉडी की। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक जीन से अगर ढेर सारी प्रॉब्लम हो, एक जीन अगर ढेर सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा हो, एग्जिबिट कर रहा हो, यहाँ पे एग्जिबिट का मतलब एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, व्हेन द सिंगल जीन्स एक्सप्रेस सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तब आपको आसान होगा समझना, ठीक है। ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जिबिट भी वही चीज होती है। तो ये हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। अब आते हैं अगला जो कंडीशन हमारा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, चलो आते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस को क्लियर कर देते हैं। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां पे बचपन में आप शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड जेनेटिक मीन्स जीन। तो क्या समझे अभी? कुछ मीनिंग समझ में आया? मैनी जीन्स, देखो बॉडी में दो ही चीजें पढ़ना है, एक जीन्स और एक ट्रैट्स। मैनी जीन्स ट्रैट्स, ऊपर क्या पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी। एक जीन्स मैनी ट्रैट्स। जब एक जीन्स मैनी ट्रैट्स, एक जीन्स जो है ढेर सारे ट्रैट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ढेर सारे ट्रैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। और जब ढेर सारा जो बॉडी में बहुत सारे जीन्स मिल करके, एक दो जीन्स नहीं, बहुत सारे जीन्स मिल करके, ऊपर के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? ऊपर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये सिंगल जीन्स बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स है, और सपोज दैट एक ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स है, ठीक है। ये तब ये कंडीशन क्या होगा? तब ये कंडीशन होगा प्लियोट्रॉपी, जो अभी पढ़ा। सिंगल जीन्स ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स के लिए, ये ट्रैट्स नंबर 1, ट्रैट्स नंबर 2, ट्रैट नंबर 3, ढेर सारे ट्रैट्स के लिए अगर एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है तो क्या होगा? ये होगा प्लियोट्रॉपी। जब एरो ट्रैट्स की तरफ हो तो जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन बन जाए कि बॉडी में ढेर सारे जीन्स, बॉडी में ढेर सारे जीन्स मिल करके एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स को कंट्रोल कर रहे हो, ये क्या है? सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स, दैट इज सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स। बहुत सारे जीन्स मिलकर के एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स को एक ढेर सारे जीन्स मिलकर के कंट्रोल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये दो डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का। व्हेन
several genes control single contrasting traits, there will be polygenetic inheritance. When several contrasting traits exhibit by the single genes, there will be the pleiotropy. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? When several genes control single contrasting traits, the phenomenon called polygenetic inheritance. और इसी वजह से आपका डाउट दूर करने के लिए मैं पहले प्लियोट्रॉपी को समझा दिया इधर, तब जाके बगल में पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस को समझाया, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में। एग्जाम्पल, स्किन कलर ऑफ द बॉडी। स्किन कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी में स्किन कलर के लिए 3 तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन? ए, बी एंड सी। इसका रिसेसिव है ए, बी एंड सी। ये डोमिनेंट ए, बी, सी और ये रिसेसिव ए, बी, सी है। ये तीनों आपस में जब कोरिलेट होंगे, यानी कि आपके लिए डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से जीन्स हैं? ए, बी, बी एंड सी, सी फॉर डार्क स्किन कलर। ए, बी, बी आप जानते हैं जीन्स पेयर में होगा तो ए का दूसरा ए ही होगा, बी का दूसरा बी ही होगा, सी का दूसरा सी ही होगा। तो सब अगर कैपिटल में होंगे तो स्किन कलर कैसा होगा? डार्क होगा। और सब अगर स्मॉल में होंगे, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्हाइट कलर के स्किन के रिस्पॉन्सिबल। लेकिन बॉडी में जानते हैं कि बीच वाले जो कलर प्योर डार्क, हम बात करें कि प्योर जो है डार्क हो और जो प्योर व्हाइट हो, उसके बाद में हमारे इंडियन कलर्स की मैं बात करूं तो इंडिया में इंटरमीडिएट कलर्स बहुत ज्यादा है। देखो मैं खुद इंटरमीडिएट कलर्स हूं, मतलब प्योर डार्क ही नहीं है, प्योर व्हाइट ही नहीं। तो ऐसे इंटरमीडिएट कलर में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ऐसे इंटरमीडिएट कलर में भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। रीजन क्या है कि ये जीन आपस में इंटरफेयर कुछ इस तरह से होते हैं। इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, पहले चीजें आपको समझा दे रहा हूं। देखो ये एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। स्किन कलर, सिर्फ स्किन कलर, स्किन से ही एसोसिएट है ये सारे जीन्स, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा था कि कोई हेयर फॉल्स कर रहा है, कोई मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है, कोई स्किन पिगमेंटेशन कर रहा है। अब देखो हेयर कहां है? यहां है। मेंटल दिमाग कहां है? अंदर है। वो दूसरी चीज होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। स्किन जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग में है, इसलिए प्लियोट्रॉपी। अब यहां पर देखो सब स्किन है। स्किन का देखो, अभी मैं बोल रहा हूं डार्क कलर, क्या स्किन का? व्हाइट कलर, क्या स्किन का? मैंने स्किन वर्ड बार बार बोला, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एक ही के लिए स्किन कलर, ठीक है। लेकिन मैं मेंटल रिटार्डेशन, क्या? दिमाग का। हेयर का तो बोलेंगे नहीं, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। हेयर फॉल, क्या दिमाग फॉल बोलेंगे? नहीं, हेयर से फॉल बोलेंगे। स्किन भी नहीं बोल सकते, स्किन फॉल। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जब डिफरेंट होगा, जीन एक होगा प्लियोट्रॉपी। जब एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा, ढेर सारे जीन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल, ये जो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आपको इंटरमीडिएट कलर के लिए जीनोटाइप को मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कलर का जीनोटाइप ये हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हो सकता है, ठीक है। ये भी इंटरमीडिएट कलर होगा। और इंटरमीडिएट कलर ये भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये सब होंगे, ठीक है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। तो इससे सिर्फ एक ही जीन बनेगा, ए बी सी। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, 1 2 3 1 2 3 लोकाई है। देखो लोकाई टर्म आता है, बहुत बार आता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये डीएनए है, डीएनए पे एक जगह ए है, दूसरा स्मॉल है, ये बी है, दूसरा स्मॉल बी, सी है, तीसरा स्मॉल सी। तो एक लोकाई, दूसरा लोकाई, तीसरा लोकाई, ठीक है। 3 लोकस पे हेटेरोजाइगस है। पूछता है इससे कितने पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे। तो एक मैं फार्मूला दे रहा हूं, 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ लोकस, नंबर ऑफ
लोकस। अब देखो नंबर ऑफ लोकस कितना 1 2 3, तो कितने जीन बनेंगे 2 × 2 यानी कि कितना बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के इससे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्या हो गया होगा प्लियोट्रॉपी और ये तुम्हारा प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेवरल जीन्स की जगह पे सेवरल एलील्स कंट्रोल सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग टैग्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसको आपने कब पढ़ा था, जिसको आपने ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ा था। जब एक जीन्स, यहाँ पे देखो, जब बहुत सारे जीन्स एक कॉन्ट्रास्टिंग टैग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो क्या हो जाएगा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। अब ये यहाँ पे जीन्स की जगह पे जो एलील करेंगे तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का डेफिनेशन हो जाएगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको बच गया है नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स, यानी मॉर्गेनियन थ्योरी, उससे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।